Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. Good morning to all of you. Hope you all are fine. Good morning, sir. I am fine, sir. Today I am going to teach about the simple analysis of flat strip rolling, right? In the last class, we have discussed about the definitions, simple definitions of rolling. Also, we have discussed about the draft, right? What is the draft? Here, that is the difference between the thickness, right? What is the thickness here? Initial thickness, that is T naught, minus final thickness, that is TF, right? Hello. Right, already okay. Okay, right. So what is the draft here? Already I have discussed now. Draft is equal to D is the draft is denoted by D, and that is equal to T naught minus TF. That is the initial thickness minus final thickness, right? Okay. And also I have discussed about the volume consistency, that is V initial or V naught. V naught, yeah, V initial, that is equal to V final, right? V naught, that is equal to V if, right? And V is given as V क्या होता है? V is equal to T naught into W naught into M naught, and final volume will be equal to TF into WF into LF, right? यहाँ पे क्या है? T is the thickness, W is the what? W is the width, and L is the length. Clear to everyone? Clear to everyone or not? Okay. Similarly, Yes, in the sir. case, okay, then we are going to write in the case in the term of volume consistency for units per second, right? V volume per second, right? That इसको क्या करेंगे? That V is divided by time, right? So here we can say that length is changing here. So length dividing by time, that will give you the velocity here, right? That is the V naught, and this is the PF, right? Okay. So this is V naught is what? This is known as entry velocity. Entry. This is the entry velocity, and this is the exit velocity, right? Exit velocity and entry velocity is having the different magnitude, right? This is the entry velocity, and this is the exit velocity, and this is the there is a velocity of a roller, that is known as Vr, right? The value of Vr lies between the V naught and Vf. Already I have discussed, right? Vr, that Vr that will lies between Vf and V naught. Clear to everyone? ठीक है. तो V नॉट जो होगा, दैट इज द रोलर वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एंट्री वेलोसिटी से ज्यादा होगा, और एग्जिट वेलोसिटी उससे कम होगा. याद रखना आप लोग. क्लियर और नॉट? ओके. Again, I have also discussed about the slip. ठीक है. Slip, what is the, this is the forward slip. Forward slip is nothing, it is the Vf minus Vr dividing by Vr, where V is what? Vr is the roller velocity, roller का velocity, and Vf is the exit velocity, right? ठीक है. Similarly, backward slip की हम बात करते हैं. Slip backward, right? So what will happen? Vr minus V naught divided by Vr. Already I have discussed these things, right? Clear to everyone? Clear or not? Yes. Okay. Look at the questions here, right? This is very good questions, right? A 2 questions में देखो क्या लिखा हुआ है. A 2 inch thick 2-inch thick slab is 10 mm in width,
ठीक है, इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, W नॉट दिया हुआ है आपका, W नॉट दिया हुआ 10 इंच एंड दिस इज द थिकनेस, दैट दिस T नॉट दिया हुआ आपका 2 इंच एंड 12 फीट लॉन्ग, दैट इज 12 फीट कहने का मतलब आपका कितना दिया हुआ है आपका, दिस इज द लेंथ, राइट, दिस इज द लेंथ, दैट इज L नॉट इज गिवन हियर, राइट, log. Thickness is to be reduced in the 3 steps in the hot rolling operations. Each step will reduce the slab of 75% of its previous thickness, right? ठीक है, it is expected that for this metal and reductions the slab is widened by 3% in each step. If the entry speed of the slab in the first step is 40 feet per minute and roll speed is same for the 3 steps, right? You have to determine first length, right? Length of the final strip, also exit velocity of the slab after the final reductions. Question ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो मेटल का जो थिकनेस है दैट इज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, तो थिकनेस जैसे घटा रहे हैं तो इच स्टेप में हाउ मच थिकनेस इज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, यहाँ पे कितना सेट ऑफ रोलर लग रहा है, यहाँ पे 3 स्टेप में हम रिड्यूस कर रहे हैं, राइट, स्टेप 1 में एक रिडक्शन करेंगे, सपोज दिस इज द मेटल हैविंग थिकनेस, इनिशियल थिकनेस T नॉट एंड T नॉट इज इक्वल टू 2 इंच है, राइट, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका थिकनेस को क्या करेंगे, रिड्यूस करने जा रहे हैं, राइट, we will get the thickness here, right, we will get the thickness here, this will be how much, this will be how much the value of thickness, how much the value of thickness will be, इसका thickness कितना होगा जी, suppose this is the T1 and T1 का वैल्यू कितना हम लिख सकते हैं, T1 is equal to suppose this is the T नॉट, तो T1 को क्या लिख सकते हैं, T नॉट इंटू 0.75, 70% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप में 70 कितना है, 75% रिडक्शन हुआ, राइट, 75% का रिडक्शन हुआ प्रीवियस, क्लियर टू एवरीवन, राइट, ठीक है, नाउ अगेन T1 अगेन in the second stage, this is the first step here, ठीक है, reduction stage 1, reduction stage 2, ठीक है, यहाँ फिर से क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, this is the step 2 here, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, राइट, सपोज दिस इज द T3 reductions is equal to T नॉट को क्या बोलते हैं सर, T0 को यहाँ पर, T naught is the initial thickness of the strip, initial thickness of the slab, right, or strip, clear to everyone, ये initial thickness है, that is T naught, already I have mentioned here, right, ठीक है, अब T2 की हम बात करते हैं, तो T2 is equal to कितना हो जाएगा बताओ, 0.775 into previous thickness, ठीक है, तो previous thickness कितना था, T1 था, तो T1 का कितना हो जाएगा 75%, तो 0.75 ऑफ किया हो जाएगा, T1 हो जाएगा, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T नॉट, तो फिर से क्या हो जाएगा 0.75 इंटू T नॉट हो जाएगा, ठीक है, फिर से एक सेट रोलर लगा दिया हमने, राइट, फिर से ये क्या हो रहा है, इसका थिकनेस को हम फिर से रिड्यूस कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे थिकनेस क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा, एंड T3 विल बी इक्वल टू T फाइनल, राइट, ठीक है, तो T3 कितना हो जाएगा या T फाइनल बोलो, प्लीज टेल मी अगेन, 75% का रिडक्शन हो रहा है ना, रिड्यूस द स्लैब टू 75%, 275%, मतलब कितना परसेंट का रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, 25% का रिडक्शन हो रहा था, राइट, 275% कह रहा है, ओके, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है तुम लोग को या नहीं जी, हेलो, हाँ सर, ओके, तो टीएफ का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ लक्ष्मण, टीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.75
0.75 into 0.75 into 0.75 टाइम्स टी नॉट। ठीक है, टी नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो देखो टी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.75 0.75 0.75 इंटू टी नॉट। टी नॉट का वैल्यू हमने क्या रखा था यहाँ पे 2 इंच रखा था, राइट। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी एफ। टी एफ इज इक्वल टू 0.844 इंच। क्लियर? Right now, please look at the questions. In the it is expected that for this metal and reductions, the slab will be beaten by 3%. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसा कि थिकनेस घट रहा है तो क्या हो रहा है, चौड़ाई इसका बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? ईच स्टेप में इसका चौड़ाई कितना बढ़ रहा है? 3%, राइट, बाय 3%, राइट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली हम लिख सकते हैं इनिशियल क्या हो जाएगा, तो ये आपका 3 टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई किया 75 का 0.75 75% टू मतलब 25% क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा था इस स्टेप में, तो बचा मेरे पास कितना 75% बचा। सिमिलरली 3% का क्या हो रहा है, रिडक्शन इंक्रीमेंट हो रहा है इन द विड्थ। ठीक है, तो विड्थ, फाइनल विड्थ कैन बी रिटन एज इन ईच टाइम देयर विल बी इंक्रीमेंट बाय 3%। ठीक है, तो 1.03 into 1.03 into 1.03 और इनिशियल थिकनेस। ठीक है, इसमें वृद्धि हो रहा है इनिशियल थिकनेस। इनिशियल थिकनेस में रखे, इनिशियल विड्थ कितना है, सॉरी इनिशियल विड्थ इज W नॉट इज इक्वल टू कितना है 10 इंच, राइट। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू 10.927 इंच, राइट। ठीक है, ओके, तो ये इक्वेशंस, दिस इज अ वर्किंग फार्मूला हियर, put the all unknown put the known value here, you will get the value of LF is to be determined, right। ठीक है, लेंथ किसका निकालना है, लेंथ ऑफ द फाइनल length of the slab in the final conditions, that is LF you have to determine। ठीक है, तो आप क्या इनिशियल आपका थिकनेस पता है, इनिशियल विड्थ पता है, इनिशियल क्या लेंथ पता है, राइट। टीएफ पता है, अभी हमने निकाला टीएफ, एंड डब्ल्यूएफ भी निकाल लिया हमने, एलएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, राइट। एलएफ विल बी हियर 26.025 feet। Is it okay or not? Is it okay or not? Is it okay or not? Yes, sir. Okay. लोग ज्यादा स्टूडेंट लोग तुम लोग क्या हो या नहीं हो जी Yes, sir. क्लास में? हाँ तो बोला करो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो सर कि नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, या समझ में आया तो बोल दो कि यस सर हम समझ गए। ठीक है, right now we are going to use the another equation, that is the velocity का equation, right। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया, इनिशियल वेलोसिटी आपका दे दिया था ना 40 फीट पर मिनट दिया था, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है। सिमिलरली आप क्या करोगे, जो चीज दिया हुआ है बैठा दोगे। ठीक है, टी नोट दिया हुआ है, डब्ल्यू नोट दिया हुआ है और वी नोट दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली तीनों टाइम, ये तीनों टाइम बोले क्या? तीनों टाइम हम बोल रहे हैं, शुरू से तो बोल रहे थे थिकनेस, इनिशियल थिकनेस पूछा था ना अभी जस्ट, इनिशियल थिकनेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सर डब्ल्यू सर, डब्ल्यू विड्थ है। अरे सब कुछ यार पढ़ा दिए, तुम कहाँ सोया हुआ है कुणाल? तब यहाँ वेलोसिटी कैसे आ गया सर? अब यही नहीं सर, ये वाला नहीं सर। लास्ट क्लास से तुमको हम बता रहे हैं वेलोसिटी कैसे होगा। यहाँ पे क्या था देखो, वॉल्यूम कंसिस्टेंसी है ना जी, वॉल्यूम कंसिस्टेंसी है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू इनिशियल Yes, वॉल्यूम इक्वल टू। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट भी सेम होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट Yes. मतलब वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय टाइम सेम होगा। ठीक है, जनरली यहाँ लेंथ को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी देगा। क्लियर, एंट्री yes. वेलोसिटी एंड एग्जिट वेलोसिटी, तो वही हो गया इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज एंट्री वेलोसिटी, एंड एग्जिट वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे वीएफ निकालना है हमें, तो टीएफ का वैल्यू हमें पता है 0.844 आया था, एंड डब्ल्यूएफ का वैल्यू पता है हमें इतना आया था 10.927 आया था ना, लास्ट में दिखा था मैंने। देखो यहाँ पे निकाला ये वैल्यू और ये वैल्यू, राइट। ठीक है,
put the all known values, you will get the unknown things, right? Bf will be equal to 51.78 फीट पर मिनट। ठीक है, इस तरीका से आप लोग बना पाओगे एग्जाम में या टेस्ट में, जो भी है। ओके और नॉट? अच्छा से हाँ, नहीं सर। बना पाए, ट्राई करना। वेरी गुड। नहीं तो आप लोग हाँ प्रैक्टिस करो, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी हैव टू फाइंड द कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस फॉर रोलिंग ऑपरेशंस। यदि कंडीशंस ये सेटिस्फाई करेगा तो रोलिंग ऑपरेशंस होगा। व्हाट इज द कंडीशंस फॉर रोलिंग ऑपरेशन इज टू बी हैपेंड हियर, राइट? ठीक है, जस्ट वी विल लुक एट दिस हियर। ठीक है, लुक एट द फिगर हियर, राइट? This is the roller here, this is roller here, this is what? This is the roller, right? Roller having radius क्या है? Radius, suppose this is the capital R is the radius of the roller. ठीक है, this is the center of the roller, right? This is the center of the roller, and this is what? This is the contact arc length. ठीक है, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखना, जहाँ कर्सर जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? मेटल जो वर्क पीस है, वर्क पीस विल बी इन कांटेक्ट विद द रोलर, क्लियर? And this contact length will make an angle at center of the roller, that is alpha, and this angle is known as bite angle. ठीक है, that is angle of bite or angle of contact. समझ में आया बात? समझ में आया? angle of contact and angle of bite is the same thing, right? ठीक है, alpha is the angle of bite and angle of contact, right? ठीक है, okay. Now when it is in contact, the roll will be exert and normal forces. ठीक है, that is the normal forces is PR. PR is the normal forces, right? ठीक है, this is the, देखो, ठीक है, ये this is the directions of PR. Suppose this is the horizontal line है, खींचा हमने। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? देखो, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा जी बताओ? ये एंगल भी अल्फा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर। हेलो, ओके, यस ठीक है, ओके। ये कितना हो जाएगा? अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये 90 है तो 90 माइनस अल्फा। तो सिमिलरली ये जो हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, दिस विल बी आल्सो अल्फा। ठीक है, समझ में आया? होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए आप, दिस इज द पीआर हियर, राइट? पीआर हियर, तो या इसका जो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे, दिस इज द पी आर, यहाँ पे हो जाएगा cos alpha, and this is the PR sin alpha, that is in the horizontal left y direction. ठीक है, इसको रिजॉल्व किए PR को, तो ठीक है। अगेन दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग, F इज इक्वल टू म्यू इनटू R, नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। PR विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो F इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लग रहा है? कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोलर एंड वर्क सरफेस, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F, यहाँ पे हो जाएगा F cos अल्फा, और यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे F सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा F sin अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा F cos अल्फा, राइट? ठीक है, दिस इज द F cos अल्फा एंड दिस इज द PR sin अल्फा। ठीक है, तो ये क्या करना चाहिए? किधर आपको, यदि मान लो कि मेटल को इधर फ्लो करना है, ठीक है, इफ the rolling operations will have to happen, right? So what will happen? The F cos PR sin alpha. Is it clear or not? Is it clear or not? Is it clear or not? Please tell me. Yes. Are you understanding or not? Please tell me. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फॉर द वर्क पीस टू एंटर द थ्रोट ऑफ द रोल। ठीक है, रोल गैप में वर्क पीस को या वर्क मटेरियल को एंटर करने के लिए क्या होना चाहिए? द कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज दिस फोर्स, राइट, must be equal to or greater than the horizontal component of the normal reaction, that is
ये आपका जो हो गया नॉर्मल रिएक्शंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा विल बी एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन पी आर साइन अल्फा। इज इट क्लियर और नॉट? सुनो बताओ जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है एफ कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू पी आर साइन अल्फा, राइट? ओके ओके ओके, नाउ प्लीज इसको रीअरेंज करते हैं, राइट? वी आर गोइंग टू रीअरेंज हियर एफ डिवाइडिंग बाय पी आर that will be at least equal to and greater than sin alpha y and cos sin alpha by cos alpha. And what is sin alpha by cos alpha? That is equal to tan alpha, right? ठीक है, that is equal to tan alpha, that is equal to tan alpha, right? Okay, and we know that f by pr is equal to what? Look at this here, already I have discussed f is equal to mu into pr, right? So mu is f is equal to mu into pr. Then can we say here that f dividing by pr is equal to what? That is equal to mu, that is equal to mu, right or not? Yes sir. Okay, right. So we can say here for the workpiece is to be drawn inside the roll gap. What should be the conditions? Mu should be equal to or greater than the value of tan alpha. This is the conditions, right? These conditions has to be satisfied if you are going to do the rolling operations, right? So these conditions must satisfied. If this will not satisfied, the workpiece cannot be thrown inside the roll gap, or you cannot operate the rolling operations. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन हमने लिख दिया, if tan alpha is greater than mu then the workpiece cannot be drawn. That is यहाँ पे tan alpha जो है mu से ज्यादा हो जाएगा, म्यू को ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा को कम से कम बराबर होना चाहिए, then we can say that the rolling operations will be performed, right? यदि म्यू जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? रोलिंग म्यू जीरो हो गया, फ्रिक्शनल कांस्टेंट या सॉरी फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो ये स्लिप कर जाएगा ना, तो ये इसके अंदर रोल गैप के अंदर ड्रॉ नहीं कर पाएगा, राइट? ठीक है, drawing is happening with the applications of the frictional forces. यदि frictional force ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? रोल अंदर रोल गैप में इंटर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो रोलिंग ऑपरेशंस will not be happen. Is it clear? Yes sir. Okay, very good. Right, we are going to define the maximum draft. Already we have told you the draft is equal to what? Draft, that is d is equal to T naught minus Tf. Can we write here T naught minus Tf, right? ठीक है, initial thickness minus final thickness, right? That is the draft here, ठीक है? So we can write the value of draft in term of frictional coefficient and radius, right? Okay, so just we are going to derive the equations here, right? Look at the figure here. This is the triangle here, A, B, and C, right? Okay, this is what? This is the contact length, right? Contact length. This is what? This is the bite angle alpha. Already I have discussed in the last step. यहाँ आप क्या बना रहे हो? यहाँ एक हमने ट्रेंगल बना रखा है, राइट? यहाँ पे हम एक ट्रेंगल बना रखा है। मुकेश मंडल इज एंटरिंग वेरी लेट, नहीं अलाउ नहीं करना चाहिए, राइट? कोई फायदा नहीं है इतना देर आने का, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ए बी इज व्हाट? ए बी इज द रेडियस, राइट? ए बी इज द रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है? ए बी इज द रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है? Similarly, यहाँ पे एक लाइन खींचे, this is the line perpendicular on AD. AD is also what? AD is also R. AD is also R. Clear? ठीक है? And यहाँ पे क्या है? BC is what? BC is the perpendicular on AD. ठीक है? AD पे एक हमने perpendicular किया, ठीक है?
तो यहाँ पे जो सी डी है, सी डी इज नथिंग, इट इज इक्वल टू ए, ठीक है, इट इज सी डी इज ए एंड इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू ड्राफ्ट डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। यहाँ से इतना ड्राफ्ट हमें मिला, यहाँ से इतना ड्राफ्ट मिला, ठीक है। दिस इज द टोटल ड्राफ्ट होगा, तो ये कितना होगा, ड्राफ्ट डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। और इसको और लिख सकते हैं डी सॉरी टी एफ माइनस सॉरी टी नॉट माइनस टी एफ dividing by 2, can be right or not, cd is equal to a or d by 2 or d sorry t naught minus tf dividing by 2, can be right or not, please try to understand, yes or no, yes or no, hello, hello, can you hear me, हाँ सर सुन रहे हैं, बोलिए। okay, ठीक है। Yes, okay, sir. look at the right angle triangle here, from the right angle triangle, that is ABC, triangle ABC, can we apply the Pythagoras equations, that is r square AB square is equal to BC square plus AC square, can be right, yes, yeah, can be right, okay. The AC is or AB is what, r square, right, r square is equal to LP, this is, suppose this is the LP, BC is LP plus r a minus a का whole square, ठीक है, this is AC is what, r minus a, AC is r minus a का whole square, right, ठीक है। now now by rearranging you will get the value of LP square is equal to r, ये r कट जाएगा, तो you will get the value 2 ra minus a square, right, ठीक है। तो this r, this a जो है, this a is very small relative to the radius of the roller, right, this is very greater, r is very greater than the value of a, right, a is what, d by 2, clear। इसका स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर will also be very less, ठीक है, that we can neglect this, ठीक है, with comparison of the capital R we can neglect this value as it is very small relative to the value of R here, ठीक है। so as A is very small, then the R we can ignore here, right, A square can be neglected here, then the what will the value LP is nearly equal to root under 2 into R into A, right, 2 into R into A, right, okay. Now please tell me, already I have discussed about the value of A. A is what, already I have told you, A is equal to T naught minus TF dividing by 2, and 2A is equal to क्या आता है, 2A is equal to T naught minus TF, इसी को तो ड्राफ्ट कहते हैं ना, दिस इज द ड्राफ्ट हियर, ठीक है। और ड्राफ्ट को इसको डेल्टा एच भी कहीं कहीं लिखते हैं, ठीक है, तो डेल्टा एच नथिंग TF minus T naught minus TF is the delta H. How much the reductions is happened here, right? This is the delta H is, delta H is what? Delta H is the, delta H is the reductions, total reductions, ठीक है। तो यहाँ पे R as it is रहेगा, ठीक है, 2A is equal to, this is the 2 into A, 2A will be equal to delta H. Can we write here? Root under R into delta H. ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट अंडर आर इंटू टी नॉट माइनस टी एफ, ओके, डेल्टा एच इज टी नॉट माइनस टी एफ, क्लियर, लुक एट दिस हियर, ओके, क्लियर, ओके, look at the triangle again, mu can be written as tan alpha, mu is equal to, already I have told you na, mu is equal to tan alpha, right, ठीक है। तो tan alpha is equal to what will tan alpha, what is the value of tan alpha, look at the triangle L, tan alpha is equal to क्या होता है, ये perpendicular dividing by base, ठीक है, perpendicular is what, LP dividing by R minus A, LP dividing by R minus A का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा H by 2 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। एंड डेल्टा H by 2 that is A is very less than the value of R, so we can neglect here also, right, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R root under R into delta H dividing by R,
ठीक है, तो इसको रूट में करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 r विल कैंसिल आउट, ठीक है, द फाइनल इक्वेशन विल बी लाइक दिस, रूट अंडर डेल्टा एच बाई आर, राइट, ठीक है। अब ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, तो म्यू स्क्वायर आर इधर चला जाएगा, तो म्यू स्क्वायर आर दैट विल इक्वल टू डेल्टा एच, राइट, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर इनटू आर, दैट इज इक्वल टू डी मैक्स, एंड डी मैक्स इज व्हाट, मैक्सिमम ड्राफ्ट, ठीक है। तो एक सिंगल पास में मैक्सिमम रिडक्शंस ऑफ द मेटल कैन बी अचीव्ड बाय this formula, that is equal to mu square into r, that gives you the maximum draft or delta H max. Hope you have got the point whatever I have discussed. Yes or no? Yes, sir. Okay, very good, very good. Okay, so this is the maximum draft for successful rolling per pass. This is the maximum draft for per pass, right? Okay, okay, where D is the maximum draft and mu is the coefficient, frictional coefficient, and R is the radius. Okay, next is okay. Okay, look at this here. How many number of pass will be there? यदि number of pass निकालना है आपको, when the number of pass is to be determined, what will have to do? Just you have to do the total deformations or total reductions dividing by maximum draft. यदि क्या होगा, each and every draft will be constant, ठीक है, हर step में draft यदि constant होगा, then we can use this formula, right? If draft for the step 1 will be D1, step 2 will be D2, and for step 3 will be D3, and that draft will be equal to D, then we can find the number of passes, right? The total number of passes can be find by D total, that is the total draft, total reductions in the thickness dividing by draft, that is the maximum reductions in a single pass. Can be right or not? Okay, the maximum draft can be written as T naught minus TF. Okay, maximum thickness in the reductions, maximum reductions in the thickness can be written as T naught minus TF. And suppose that mu square into R is the maximum draft in each pass, then you can find the number of passes. How much that number of passes is required for the rolling operations? You can find in this way. Okay, look at the questions here. Look at the questions. A series of fold operations is to be used to reduce the thickness of plate from 50 mm to 25 mm. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया आपका, T नॉट दे दिया यहाँ पे, and this is the TF दे दिया, right? In a reversing two high mills, ठीक है, दो स्टेप यहाँ पे सॉरी दो स्टेप नहीं दिया, टू हाई मिल्स की बात कर रहा है, दो सर ड्राफ्ट मतलब यहाँ रिडक्शन बताएं क्या? reduce reductions, right? Okay, ठीक है, रोल डायमीटर आपका दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द रोल इज हाउ और मच? सर और एक बात पूछना था, हाँ बोलो। ये नंबर ऑफ फेजेस अगर बढ़ाएंगे तो इसमें वेरिएबल नहीं रहेगा, हमेशा ये कांस्टेंट ही रहेगा क्या? जो आप बोल, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब सर जैसे जितना बार अगर रोल करेंगे तो हर एक बार कांस्टेंट ही कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, वेरी भी करेगा कभी कभी क्या? वेरी करेगा, लेकिन अभी हमने क्या बताया कि यदि ड्राफ्ट विल बी कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी पास, ठीक है, हर एक पास में यदि ड्राफ्ट विल बी इक्वल टू सेम, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने रिडक्शन किया, सेकेंड स्टेप में रिडक्शन किया, थर्ड स्टेप में रिडक्शन किया, तो इच स्टेप में यदि ड्राफ्ट सेम रहेगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। यदि दूसरा रहेगा तो दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद यदि उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर कुणाल? क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है, ओके, तो लुक एट द क्वेश्चंस हियर। इनिशियल थिकनेस आपका दिया हुआ 50 mm, राइट, फाइनल थिकनेस दिया हुआ 25 mm, राइट, ओके, रोल डायमीटर इज कैपिटल आर, सॉरी रोल डायमीटर दिया हुआ आपका दैट इज 700 mm, so you have to find the r, r will be equal to d by 2, that is equal to 3,
50 mm हो जाएगा ना, रोल रेडियस हो जाएगा, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द रोल एंड वर्क इज गिवन, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। ठीक है, द स्पेसिफिकेशंस इज दैट द ड्राफ्ट इज टू बी इक्वल इन ईच पास, यहाँ पे दे दिया है ड्राफ्ट इज इक्वल टू इन ईच पास, हर एक पास में ड्राफ्ट क्या है, इक्वल है, राइट। ठीक है, तो वी हैव टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड एज ड्राफ्ट फॉर ईच पास, राइट। ठीक है, तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड हाउ मच, ठीक है, तो आपका कितना नंबर ऑफ पासेस जरूरत है, सॉरी कितना नंबर ऑफ पासेस जरूरत है टू अचीव, यदि 50 mm का आपका थिकनेस है उसको रिड्यूस करना है कितना 25 mm में, और ईच स्टेप जो होता है या ईच आपका पास, ठीक है, ईच पास में कितना सेम रिडक्शन हो रहा है, राइट। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ पास हमको गुजरना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। पास मतलब एक सेट रोलर यहाँ से हमने पास कराया, फिर से हमने क्या किया, इसको 25 mm लाना है हमको, ठीक है, यहाँ 50 mm से क्या लाना है 25 mm में, इसको क्या कराओ रिडक्शंस कराते हो, फिर से रोलर लगाओ रिडक्शंस कराते जाओ, फिर से रोलर लगाओ रिडक्शंस कराते जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 25 mm चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पास कितना होना चाहिए, एक पास हो गया यहाँ पे, दो पास हो गया यहाँ पे, तीन पास, यहाँ पे चार पास, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट द हाउ मेनी पासेस इज रिक्वायर्ड, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द फार्मूला ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, दैट इज टोटल रिडक्शंस इन द थिकनेस, दैट इज टी नॉट माइनस टीएफ, ठीक है, तो टोटल रिडक्शंस कितना है 50 माइनस 25, दिस इज द टोटल रिडक्शंस डिवाइडेड बाय ड्राफ्ट पर पास, एक पास में कितना ड्राफ्ट है यहाँ पे दिया है ना, इक्वल ड्राफ्ट विल बी इक्वल इन ईच पास, हर एक पास में ड्राफ्ट क्या है इक्वल है, तो एक पास में ड्राफ्ट कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा म्यू स्क्वायर इंटू आर, म्यू का वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू कितना आया 350 आया, ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 3.17 आया, ठीक है, तो 3.17 पास तो हो नहीं सकता है, तो नियरली अबाउट कितना हो जाएगा 4 पास में हमको इस मेटल शीट को गुजारना पड़ेगा टू अचीव द 25 mm thick 25 mm thickness strip. Clear to everyone? Yes or no? Yes or Yes. no? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये मैक्सिमम ड्राफ्ट की बात किया था हमने, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना ड्राफ्ट होगा, तो ठीक है, ड्राफ्ट पर पास, यदि हर एक पास में ड्राफ्ट क्या हो रहा है सेम हो रहा है, तो एक पास में ड्राफ्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल रिडक्शंस डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ पास,